أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما. الحمدللہ ثم الحمدللہ. بچوں آپ کو اسکرین نظر آ رہا؟ جی میم. ہاں ماشاء اللہ. دیکھیے میں نے اس میں آج 2 چیزیں بھیجی ہیں آپ لوگوں کے لیے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے، آج ہماری اسلامک اسٹڈیز کی کلاس ہے، ٹھیک ہے؟ دینی معلومات بولتے ہیں جس کو. ہم 2 دن ناظرہ پڑھتے ہیں، تیسرے بار ہم اپنے علم میں اضافہ کرنے کے لیے چند دینی معلومات کا مطالعہ کرتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں، قرآنی دعائیں وغیرہ. وہ ابھی میں پڑھاؤں گی، مگر آپ سے چند باتیں شیئر کرنا چاہتی ہوں اس مہینے کے متعلق. آپ کو پتا ہے یہ کون سا مہینہ چل رہا؟ کوئی بچہ بولے گا مجھے؟ ہاں جی بزیان بولو، آپ بھی بولو. جون. اچھا انگریزی مہینہ بولے آپ. اچھا اسلامک بولی بیٹے میں. اسلامک مہینہ کون سا ہے؟ ذی الحج. ہاں ویری گڈ کاشف. اور کوئی بول رہی؟ ہاں بولو بیٹے. ہاں جی الحمدللہ. آج سے ہمارا ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو رہا ہے مغرب سے، ٹھیک ہے؟ آپ کو پتا ہے اس مہینے کی برکت کیا ہے؟ اس مہینے کو اللہ تعالیٰ نے محترم مہینوں میں سے بنایا ہے. ڈھانپ کے رکھتے جو سنے بچوں، اس مہینے کو اللہ تعالیٰ نے، حالانکہ پورے 12 مہینے انگلش میں دیکھیں تو جنوری سے دسمبر تک، اور اسلامک ناموں میں دیکھیں گے تو محرم سے ذی الحجہ تک، یہ پورے 12 مہینے اللہ تعالیٰ نے جب سے زمین اور آسمان بنائے سب اللہ ہی کے مہینے ہیں. مگر ان مہینوں میں اللہ تعالیٰ نے 12 میں سے 4 مہینوں کو اور بھی زیادہ محترم اور عزت والے مہینے قرار دیا ہے. ادب والے مہینے کہہ لے، احترام والے مہینے کہا گیا ہے ان 4 مہینوں کو. کون سے 4 ہے معلوم ہے آپ کو؟ سنیے، جو ابھی ہم سے گزرا. جی بیٹے. شعبان، رمضان، ذی الحج. اچھا اور ایک رجب. ماشاءاللہ آپ نے 2 مہینے صحیح کہا، 2 غلط کہا بیٹے، سوری. 2 مہینے جو رجب اور ذی الحجہ کہا 2 صحیح ہے، اور شعبان اور رمضان غلط ہے، وہ مہینوں کو نہیں کہا. بلکہ اور کوئی بولے گا؟ کسی کو پتا ہے 4 مہینے کون سے محترم ہے؟ چلو 2 پوائنٹس تو ان کو مل گئے، باقی کے میں بتاتی ہوں. ابھی جو مہینہ گزرا نا. جی بیٹے. نہیں سوری، نہیں وہ بھی نہیں ہے. اچھا میں بتا دوں. جی سنو بیٹے. جی ابھی جو مہینہ گزرا نا ہم سے، جس کی آخری تاریخ ہے آج، ذی قعدہ بولتے ہیں اس کو عربی میں، ذی قعدہ، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آیا ذی الحجہ، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آئے گا محرم، ٹھیک ہے؟ اسلامک ناموں کی لسٹ میں آپ کو بھیجوں گی انشاءاللہ، آپ لوگ یاد کر لینا. جب تک میں جو ہے سو اب یہ آپ لوگوں کو پہلے ہی اورلی چھوٹی چھوٹی باتیں بتا کے آگے بڑھوں گی، تو ورنہ ہماری کلاس ختم ہو جائے گی. تو 4 مہینوں میں پہلے دیکھ لو، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، کنٹینیو 3 مہینے ہیں، اور بیچ میں ایک مہینہ آئے گا جو رجب کہلاتا ہے. یہ 4 مہینوں کو اللہ تعالیٰ نے محترم اور احترام والے مہینے بنایا ہے. یہ اس لیے بنایا بیٹے کہ پہلے کے زمانے میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے نا، اس
उस वक्त हर महीने में हर जगह हर तरफ गलत बुराइयां फैली हुई थी ना, लड़ाई झगड़ा, छोटी छोटी बात पे अगर कोई किसी को गाली भी दे दिया ना तो उसका कत्ल कर देते थे। कितनी बड़ी बात है ना, मार डालना सिर्फ गाली देने पर। ऐसी ऐसी बुराइयां थी। तो वो बुराइयों से रोकने के लिए एक वजह बताई गई, इन महीनों को एहतराम वाले अदब वाले महीने करार दिया गया। यानी इन महीनों में कैसा भी, सब लोग मिलके बोले कि ये 4 महीनों में कैसा भी तुम अपने लड़ाई से अपने हाथों को रोक लेना, कैसा भी अपने आप को रोकना। ये अल्लाह के महीने हैं, इसमें ज्यादा से ज्यादा नेकियां करो, नेकियां करने से ज्यादा सवाब मिलेगा और बुराई करने से ज्यादा गुनाह भी मिलेगा बोले। समझ रहे ना? तो इसलिए बुराइयों से रोकने, देखो अभी किसी चीज से हमें रोकना है तो एकदम रोको बोल तो नहीं रुक रहे ना। जैसा कि आप लोगों को फोन से दूर रहो बोल रहे हम, लॉकडाउन में फोन से पढ़ना था, फोन के करीब हुए, मगर अब फोन से फोन को दूर रखो, छोड़ दो बोल तो छोड़ दे रहे आप लोग? नहीं छोड़ रहे ना, बिल्कुल छोड़। सोचिए जरा, ये 2 साल से पहले हम फोन के इतने आदी थे? फोन हमारे हाथों में इतनी इतनी देर रहता था? बिल्कुल नहीं। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह हालात बेहतर हो रहे हैं, अल्लाह हमारी और मदद फरमाए और हालात बेहतर होते जाएं। तो ये आहिस्ता स्कूल शुरू हो गए आप लोगों के, उसके बाद होमवर्क्स रहते हैं, उसके बाद ट्यूशंस रहते हैं, उसके बाद और मसरूफियत आप उन दिनों के मुकाबले में अब कम कर दिए ना फोन लेना। इसके बाद इंशाल्लाह और दुआ करेंगे हम आपके लिए और मेरे बच्चों के लिए भी, और आप लोग फोन से दूर रखेंगे अपने आप को ताकि आप अल्लाह से करीब हो सके, नेकियों के करीब हो सके। तो कैसा होता, एक स्टेप बाय स्टेप काम करने से काम चलता। तो इसी तरह उन लोगों को बुराई से रोकने के लिए एकदम भी तुम लड़ाई नहीं करना बोलते हो, गुस्सा आ जाता था लोगों को। तो इसलिए चलो ये महीनों में नहीं करना, दूसरे महीनों में छोटी छोटी बात करे तो बात भी करना, लड़ाई नहीं करना, बल्कि ऐसे समझाते थे अल्लाह के रसूल वगैरह। तो इस तरह उन लोगों के अंदर से बुराई को दूर करने का एक तरीका अपनाया गया। ठीक है बच्चों, ये समझ गया ना? बस इतना समझो बस। जी बेटे, मैं ये बोल रही हूँ कि आप लोग ये जान लो कि अल्लाह ताला के ये 12 महीने हैं, 12 महीनों में अल्लाह ताला ने 4 महीनों को मोहतरम बनाया है। और 4 महीने वो कौन से हैं? ज़िलक़ादा, ज़िलहिज्जा, मुहर्रम, और एक महीना है रजब। मेरी इंशाल्लाह संडे को 6 PM को एक क्लास है आप लोगों के साथ कि हम ईद उल अजहा कैसा गुजारे। उस दिन मैं और आपको तफसील से बताऊंगी। आप लोग सब ज्वाइन होंगे ना मेरे साथ? प्लीज ज्वाइन हो, दूसरे बच्चे भी आएंगे। फिर उनके सामने हमारी क्लास के बच्चे नहीं रहे तो मेरे को अच्छा नहीं लगेगा। तो संडे के दिन, संडे को तो सबको छुट्टी होती है ना, संडे के दिन इंशाल्लाह 3 जुलाई है, उस दिन 6 PM को मेरी क्लास है कि हम ईद उल अजहा कैसा गुजारे, जो अब हमारी ईद आ रही है ना वो कैसा गुजारे बोल के मैं थोड़े से आपको बातें बट पॉइंट्स बताऊंगी। उस दिन आप लोग कैसा भी ज्वाइन हो जाए, ठीक है? तो उसके लिए मैं पहले आपको ये बता रही हूँ कि ये जो महीना मोहतरम शुरू हुआ जिलहिज्जा का, इसमें आज मगरिब के बाद चांद नजर आएगा, मालूम है आपको? फर्स्ट हर महीने में चांद नजर आता है, सुने बच्चों? मगर आजकल हम इतने भूल गए कि कभी जाके टेरिस पे चांद को चेक करते, कभी हम देखते? हाँ मैम, कभी काटते, कभी कभी वो भी बीच का चांद, मगर फर्स्ट दिन का चांद देखे कभी ज़यान? नहीं मैम। हाँ, तो आज देखिए इंशाल्लाह जैसे ही हमारी क्लास खत्म होगी, अगर आपके बस में है, मतलब आप लोगों के पास सहूलत है छत पर जाकर देखने की या आपके घरों में से ही देखने की, तो आज का ना चांद बेटे बिल्कुल बारीक होगा, अक्सर नजर नहीं आएगा। अगर नजर आ जाए तब बहुत अच्छी बात है, नहीं नजर आया तब भी आसमान की तरफ देखकर आपको ये दुआ पढ़नी है, ठीक है? क्या है ये दुआ? देखो, अल्लाहु अकबर। मैं यहाँ बता रही हूँ ना, नया चांद देखने पर क्या दुआ पढ़नी चाहिए? जैसे ही चांद पर नजर पड़े अल्लाहु अकबर कहें, ठीक है? अल्लाहु अकबर कहने के बाद अल्लाहुम्मा अहिल्लहु अलैना बिल अम्नी वल ईमान वस्सलामती वल इस्लाम वत्तौफीकी लिमा तुहिब्बु रब्बना व तर्जा रब्बना व रब्बुकल्लाह। ठीक है बच्चों, ये दुआ पढ़ना है।
اب کون پڑھیں گے دیکھ کے قرآن پڑھے جیسی پڑھنا ہے یہ کوئی پڑھو زویا ہاں پڑھو عائشہ اللہ اکبر اللہم احلہ علینا جی بالامنی بالامن ایمان والایمان والسلامت اسلام والاسلام ویری گڈ توفیقی نہیں توان توفیقی والتوفیق توفیقی لما تحب ربنا وترضى ربنا وربك کلا اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہت پیارا پڑھے عائشہ چلو اب ایسے دوسرے بچے بھی پڑھے تو آپ لوگوں کو ابھی یاد ہو جاتی جلدی جلدی کوئی اور پڑھیے میم میں پڑھوں ہاں زویا پڑھو بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر اللہم احل علینا اہلہ ہے بیٹے احلہ علینا بالامن والایمان ویری گڈ جی سلامتی والسلامتی والاسلام والاسلام والتوفیقی دیکھو میں والتوفیق جی میں ایسا بڑا کرنا چاہ رہی ہوں تو ایسا ہو گیا یہ سوری ایک منٹ بیٹے ہاں میم اب دکھ رہا ہاں میم دکھ رہا ہاں اب دیکھو والتوفیقی والاسلام والتوفیق ہاں یہاں ہے لما لما تحب ربنا ترضى ربنا وربك اللہ ویری گڈ کوئی اور آخری نقصہ ہے زویا مہوش آئے عائشہ پڑھ لیے عنایہ آپ پڑھتے بیٹے زویا مہوش کہاں چلے گئے ہیلو جی میم میری آواز نہیں آ رہی آ رہی میم ہاں آپ دعا پڑھیے یہ جی میم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر اللہم احلہ علینا امنی بالامن والایمان والسلامت والاسلام والتوفیق لما صحیب تحب ہے یہ تحب ربنا وترضى اور ربنا وربک اللہ وربک اللہ ویری گڈ کاشف آپ پڑھتے کاشف بابا اچھا باقی بچے اب میں پڑھاتی ہوں آپ لوگ پڑھیے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہم اللہم احلہ احلہ علینا علینا بالامن والایمان والسلامتی
والإسلامي والإسلامي والتوفيق والتوفيق لما تحب لما تحب ربنا ربنا وترضى وترضى ربنا وربك الله. ربنا وربك الله. बस इसका तर्जुमा एक बार सुन लो आप लोग. अल्लाह ताला की. अच्छा सब म्यूट कर दो. अब सुनो मेरी बात. क्या बोल रहे? इलाही अल्लाह अकबर सब में बड़ा है. अज़्ज़ा वजल इस चांद को हम पर बरकत के साथ और ईमान और इस्लाम और इस चीज की तौफीक के साथ निकाल जिससे तू राजी होता है और पसंद करता है. ऐ पहली रात के चांद मेरा और तेरा रब अल्लाह ताला ही है. अल्लाह अज़्ज़ा वजल भी है. ये दुआ कहाँ पे आई? तिर्मिजी 504 हदीस नंबर में आई. बुक नंबर 5 हदीस नंबर 504 और अदारिमी 1 हदीस नंबर बुक नंबर 1336 इसका रेफरेंस है. ठीक है बच्चों. तो अब आप देखिए, अब हमने ये जान लिया कि हम नए महीने में दाखिल हो रही. इस महीने की हुर्मत 4 महीनों में इसका शुमार होता. बोले इस महीने को और खास इसलिए कहा गया कि इसमें हमें चंद काम करने हैं. सब में पहले तो हम जुबाह करते हैं ना. बकरीद में बकरे और गाय ऊंट वगैरह जुबाह की जाती है. मालूम है ना आप लोगों को? जी मैम. हाँ. तो रमजान के पूरा महीना अल्हम्दुलिल्लाह रहमतों बरकतों और मगफिरत का महीना है. और उसकी रातों को बहुत आखिरी अशरे की 5 रातों को ताख रातें कहकर उसकी बहुत अहमियत बताई गई. कुरान और हदीस में आया. हम जाने पढ़सुमी उस पर अमल हुआ अल्हम्दुलिल्लाह. इस दिनों में ये बकरीद की अहमियत भी वैसे ही है जैसे रमजान की अहमियत थी. हम अक्सर रमजान में तो खूब अच्छी तैयारी करते हैं नेकियां कमाने की, मगर ये 10 दिनों को हम मामूली समझते. अरे इसमें कुछ भी नहीं है, खाली ईद के दिन ही कुर्बानी करने से हमको खुशी मिलती समझते. मगर नहीं बेटे, ऐसा नहीं है. आप लोग जान लीजिए कि बकरीद की भी पूरा 1 महीने की इसमें अहमियत के अलावा ये 10 दिनों की ज्यादा अहमियत है. समझ रहे? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये 10 दिन बहुत ही बरकत वाले दिन हैं. इसमें अपने आप को गलत कामों में गलत चीजों में मत डालो, बल्कि इसमें नेकियां ज्यादा से ज्यादा कमाने की कोशिश करो. हालांकि कुर्बानी करना है, गाय बकरा जो भी काटना है काट सकते, मगर उसके अलावा भी हमें बहुत से काम करना है. जैसा कि यहाँ पे मैं बता रही हूँ, देखिए अशरे जिलहज्जा के आने वाले दिनों में हमें किस चीज की कुर्बानी देना है. किस चीज की? गाय बकरी के अलावा और क्या क्या हमें को कुर्बान कर देना है, अपने पास नहीं रखना है. तो वो देखिए अल्लाह ने तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को चेक करने के लिए बेटे की कुर्बानी मांगी थी ना. वो पूरा वाकया मैं आप लोगों को संडे की क्लास में सुनाऊंगी, आज नहीं. बस ये याद रखिए, ये बकरीद हम किस खुशी में मनाते? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को अल्लाह की राह में कुर्बान करने चले थे, मगर अल्लाह ने सिर्फ उनको चेक किया था कि ये बेटे की मोहब्बत इनके पास ज्यादा है या अल्लाह की मोहब्बत. तो उन्होंने साबित कर दिया कि बेटे से बढ़ के मुझे अल्लाह ताला पसंद है. अल्लाह की मोहब्बत में मैं अपने बेटे को भी कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ. मगर अल्लाह ने क्या कुर्बानी ली उनके बेटे की? इस्माइल को जुबा किया? नहीं किया, बल्कि उनकी जगह एक आसमान से दुम्बा आया था ना, हमारे फरिश्ते ने लाकर उनकी जगह उन्होंने दुम्बे को जुबाह कर दिया, बकरे को जुबाह कर दिया. तो मांगी, मगर अल्लाह ताला ने उनको उसके बाद कितना अजर दिया? कहीं मुझसे ज्यादा अपने बेटे की मोहब्बत तो इन पे गालिब नहीं आई. ये चेक किया. फिर कुर्बानी देकर हजरत इब्राहिम ने साबित किया अल्लाह इस दिल में सिर्फ तेरी ही मोहब्बत है, क्योंकि अल्लाह से सच्ची मोहब्बत कुर्बानी मांगती है. ये पॉइंट आप लोगों के हम सब के लिए है. क्या है? अल्लाह की मोहब्बत हमसे क्या मांगती है? कुर्बानी, यानी अपनी ख्वाहिशात को अल्लाह के लिए कुर्बान कर देना. यानी क्या क्या कुर्बान करना? देखो आपने फिर अल्लाह के लिए क्या कुर्बान करने का सोचा है? मैं भी पूछ रही हूँ आप लोगों से. जैसे अपना गुस्सा. क्या कोई बोल सकते अपने हमारे पूरे 10 बच्चों में सबके पास गुस्सा है नहीं है?
सही बोलना। नहीं है। शिफा के पास नहीं है, ठीक है, शिफा छोटे हैं, उनको गुस्सा नहीं मालूम। दूसरे बच्चे उसैद भी है, उनके पास भी गुस्सा होगा, है ना उसैद? गुस्सा है। माने मालूम ना, किसी चीज पे गुस्सा आ जाना, हाइपर हो जाना। मेरे अंदर भी है बेटे, शिफा बेटे, मेरे अंदर भी गुस्सा है। जब आप मेरे बच्चे कुछ भी नाफरमानी करते हैं ना, तो गुस्सा आता है मुझे। तो गुस्से को कंट्रोल में रखना अल्लाह को पसंद है। गलत काम करे आप उनको रोकिए, मगर गुस्से से नहीं, बल्कि प्यार से, मोहब्बत से, ठीक है? सबके अंदर हमारे पास गुस्सा है, तो इंशाअल्लाह हम इरादा करेंगे अब से अपना गुस्सा अल्लाह की राह में कुर्बान कर देंगे, क्योंकि गुस्सा अच्छी चीज है क्या? शिफा बोलो। नहीं मैम। हाँ, गुस्सा करना अच्छी चीज नहीं है, किसी को डांट देना, डपट देना अच्छी चीज नहीं है, तो इसलिए हम गुस्से को कुर्बान करेंगे। दूसरी चीज यहाँ क्या बोल रहे हैं? अना। अना यानी मैं बेटर हूँ, मैं ही अच्छी हूँ, मैं ही अच्छा हूँ, ऐसा सोचना सबके पास है था ना? कोई भी अपने आप को बुरा बोलते क्या बेटे? बोलो, मैं सबसे पूछ रही हूँ। कोई भी अपने आप को बुरा नहीं बोलता, मैं सबसे अच्छा हूँ सोचते, मगर ये सोचने में कभी कभी हमसे गलती हो जाती है, दूसरों को कमतर समझते हम, उनसे बेटर मैं हूँ, वो मेरे से कम है, उन्हें समझते। ऐसा नहीं, ये सोचना, अपने आप को अच्छा समझना अच्छी बात है, ठीक है, आप सोचिए, मगर दूसरों को अपने से कमतर मत समझिए, ठीक है? इसको अना बोलते। अना किसको बोलते? अपने आप को बेटर समझना, दूसरों को कमतर समझना, ये गलत बात है, ये नहीं सोचना। इस चीज से अल्लाह के रसूल ने मना किया। अल्लाह के रसूल तो दुनिया में सब में अच्छे अखलाक वाले नेक इंसान थे, मगर कभी भी उन्होंने नहीं कहा कि मैं ही तुमसे अच्छा हूं। वो हमेशा अल्लाह से माफी मांगा करते थे, इस्तगफार पढ़ा करते थे। क्यों? कहीं मुझसे कब कौन सी गलती हो जाती नहीं मालूम, बल्कि। तो ये अपने आप को बेहतर समझना अच्छी बात है, मगर दूसरों को कमतर समझना अना कहलाता। ठीक है बच्चों, ये भी हम अपने दिल से निकाल देंगे, ऐसा नहीं सोचेंगे। अगर कोई बच्चा नहीं सोचता तो अच्छी बात है, मैं सब आप लोगों के पास है नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि आप लोग बहुत इज्जत वाले अच्छे बच्चे हैं, इसीलिए अल्लाह ने आपको हमारी क्लास में ज्वाइन किया। अल्हम्दुलिल्लाह, ये आदत नहीं है तो अच्छी बात है, मैं बता रही हूँ दुनिया में ऐसा भी होता है बल्कि। और नफरत, नफरत की भी कुर्बानी देंगे हम, यानी किसी से भी नफरत नहीं करना, चाहे छोटी नफरत हो या बड़ी नफरत। यानी भाई बहन से भी गुस्सा होके मेरे को तुम्हारे से नफरत है, ऐसा बोल लेते थोड़े बच्चे। आप लोग नहीं बोलते, मैं बोल रही हूँ दुनिया में ऐसा होता, मुझे आपसे नफरत है, मुझे वो खाने से नफरत है, मुझे उससे चीज से नफरत है, ऐसा नहीं बोलना, बल्कि हर चीज में एतदाल पसंद रहना, मियाना रवि, यानी नरमी से कौन सी भी चीज गुफ्तगू करना, गुस्सा नहीं आना, ठीक है? ये एक है। इसके बाद माफ कर देना, मैं बोली थी ना, दूसरों को माफ कर देना नेकी है। कोई भी अगर हम गलती करा, हमारे कोई गलत समझा, हमारे साथ कोई गलती करा, उसको हम माफ कर देना, समझ रहे हैं? ये बहुत बड़ी आला सिफत है, उलुल अज़्म नेक लोगों की सिफत है ये, मालूम? दूसरों की गलतियों को माफ कर देना। कोई आपके साथ नाइंसाफी भी करा, ठीक है, कोई आपके साथ नाइंसाफी भी करे, तब भी आप उसको माफ कर देना, बदला लेने की कभी भी कोशिश नहीं करना, क्योंकि एक दिन आने वाला है ना, मालिक यौमिद्दीन, जिस दिन अल्लाह मालिक होगा, उस दिन वो अल्लाह ताला जिसके जितने अमल है उन तमाम का सही सही बदला दे देगा। हमें बदला दुनिया में लेना नहीं है, अल्लाह की खातिर सबको माफ कर देना है, ठीक है बच्चों? अगर आपके साथ किसी ने कोई गलती की तो आप उसको बदला लेंगे या माफ करेंगे? माफ करेंगे। जी जी, सब बोलना भाई, शिफा एक ही बोलते क्या, दूसरे बच्चे भी बोलना, ठीक है? और एक आदत क्या है? टीवी और ड्रामे देखना। अगर हम आप लोगों को तो ड्रामे वगैरह नहीं मालूम होंगे, कार्टून्स बहुत ज्यादा देख देख के अपनी आंखें खराब कर लेते, जो ये छुट्टियों में, ये लॉकडाउन में फोन हमारे पास आने से हम लोग जिसके आदी हो गए ना, वो चीजों से भी हमें इंशाल्लाह आपसे कुर्बानी देना है। ये 10 दिन तो बिल्कुल फोन छीना नहीं है,
ड्रामे देखने के लिए, कार्टून देखने के लिए, टीवी देखने के लिए। इसके अलावा भी अगर आपको थोड़ी देर टाइम पास करना है, जैसा कि मैं बोली थी ना, एकदम छोड़ दो बोल तो नहीं छोड़ते, ये 10 दिन तो बिल्कुल नहीं छीना है, गलत है, हराम है बोल के रख दो। उसके बाद जब आप फोन लेंगे थोड़ी देर के लिए कार्टून देख सकते, ठीक है, थोड़ी देर के लिए, बस मम्मी 10 मिनट, आधा घंटे से ज्यादा नहीं, ठीक है। ऐसा अपने आप में आदत डाल के छोड़, दूर दूर करते करते वो हमेशा के लिए दूर हो जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है ना। ये भी समझ में आई बात मेरी? जी मैम। वेरी गुड। इसके अलावा थोड़े बच्चे, मेरे को तो यकीन है हमारे पास जो जो बच्चे हैं वो बिल्कुल गाने वगैरह नहीं सुनते, मगर थोड़े लोगों के पास जो आदत होती है गाने सुनना, वो भी छोड़ देना है अल्लाह की खातिर, बिल्कुल गुनाह है। क्योंकि एक अजाब बता दूं, जो गाने और म्यूजिक सुनता है अल्लाह ताला उसके दिन, उसके क़यामत के दिन उसके कानों में ना खौलता हुआ लोहा डालेंगे, सीसा बोलते, खौलता हुआ गरम गरम ऐसा खौलता हुआ सीसा डालेंगे जिससे उसके कान फट जाएंगे। तो हमें बिल्कुल म्यूजिक नहीं सुनना है, ना गाने गाना है इंशाल्लाह। ये तो हमारे बच्चे नहीं करते, मेरे को यकीन है। चलो आगे बढ़ो। गीबत करना छोड़ देना है। गीबत किसको बोलते मालूम? यानी किसी के पीठ पीछे उसकी बुराई करना, चाहे वो बुराई उसके अंदर हो या हो तो वो गीबत कहलाएगी, ना हो तो वो बहतान कहलाएगा, ठीक है। किसी के पीठ पीछे उसकी बुराई बिल्कुल नहीं करना, छोड़ देना, ठीक है। झूठ बोलना भी छोड़ देना है, चुगली करना भी छोड़ देना है। ये तमाम चीजों को हम अल्लाह की खातिर इस महीने में आदत डाल लेंगे। इस 10 दिन में सीखते सीखते हमेशा के लिए झूठ बोलना छोड़ देंगे, गीबत करना छोड़ देंगे, किसी के पीठ पीछे उसकी बुराई करना छोड़ देंगे, ठीक है बच्चों? जी मैम। समझ में आ गई ना? किसी को चुगली या झूठ या गीबत के बारे में पूछना है तो पूछो सवाल। सबको मालूम है गीबत किसको बोलते हैं? झूठ तो मालूम है, चुगली किसको बोलते हैं? किसी के पीछे, हाँ, चुगली खोरी माने कोई फ्रेंड दूसरी फ्रेंड से किसी तीसरी फ्रेंड के बारे में गलत गलत बातें उसके बाद डाल देना उसके जहन में, उन्होंने ऐसा करते जी, उन्होंने वैसा करते जी, ऐसा गलत बातें। अगर आपको नहीं मालूम है तो अच्छी बात है, वो छोड़ दो इंशाल्लाह। अल्लाह आपको हमेशा इन बुराइयों से पाक रखे। मगर बता रही, ये बड़े होते गए जैसा आपको मालूम होता, बताना इसलिए जरूरी है कि ताकि आप आगे चल के ये सुने, चुगली कर रहे हैं क्या बोलते, अरे हमारे टीचर ने कहा था चुगली करना गलत है, हम नहीं करेंगे, किसी के पीठ पीछे उसकी बुराई नहीं करेंगे बोल के हम सोचेंगे, ठीक है बच्चों? मैम मेरा एक डाउट है। हाँ बेटे जोया, मैं विश पूछिए। हाँ मैम हमें अच्छाई भी नहीं बोलना क्या मैम, थर्ड पर्सन को? हाँ बोल सकते, अच्छा ही बोल सकते, बुराई नहीं बोलना है। किसी की अच्छाई बोलना है, आप उनके पीछे ही बोलिए, बिल्कुल बोल सकते आप, ठीक है मैम? थर्ड पर्सन को हम बोलना कि अरे वो उनके पास ये अच्छाइयां हैं जी, माशाल्लाह अपन भी ऐसा करेंगे, ऐसा बोल सकते आप। मैम? जी बेटे, समझ गए जोया? जी मैम समझ में आया, अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह। हाँ जयान बोलो बेटे। मैम गीबत मतलब? हाँ गीबत मतलब ये है, देखो अब 3 बच्चों के नाम ले रही हूँ मैं, एक जैद है, एक आमिर है, एक बकर है, ठीक है। एक का नाम जैद है, एक का नाम खालिद बोलेंगे, बकर बोल तो आप लोगों को नहीं समझ में आएगा। एक जैद है, एक खालिद है, एक आमिर है। जैद और खालिद दोनों मिलके क्या कर रही? आमिर की बुराई कर रही, आमिर के सामने नहीं, आमिर के पीछे। आमिर नहीं झूठ बहुत बोलते, आमिर नहीं खेल में गलत ठुंडी करते, गलतियां करते और लोगों को मारते, लोगों को ढकल देते। ये क्या है? अगर आमिर ऐसा हो भी, आमिर अगर ढकलने वाला हो, झूठ बोलने वाला हो, तब भी उसके पीछे नहीं बोलना। अगर आपको आमिर से हमदर्दी है, उसके अंदर ये आदत नहीं रहना, तो आप आमिर को अकेले लेके जाके समझाना, देखो आमिर, ये अल्लाह के रसूल ने मना किया है, ऐसा झूठ नहीं बोलना, ऐसा लोगों को तकलीफ नहीं देना, किसी को मारना नहीं, वगैरह वगैरह बोल के आमिर की गलतियां आमिर से बोल के दूर कराना।
दूसरों को बोलने से फायदा क्या, समझ रहे हैं आप? और आमिर में जो गलती है ही नहीं, वो गलती बोलना, उसके पीछे बोहतान हो जाता, इल्जाम लगाना हो जाता। समझे जयान आप? गीबत किसको बोलते हैं? किसी के पीठ पीछे उसकी बुराई दूसरे से करना, थर्ड पर्सन से, जिसको हमारे अल्लाह ने और रसूल ने मना किया है। मैं नामा लेके इसलिए समझाई ताकि आप लोगों को समझ में आया। जैद और खालिद मिलके किसकी बुराई कर रहे थे? आमिर की। हाँ, आमिर की। हालांकि वो बुराई उसमें है, तब भी हमें पीछे उसके नहीं बोलना है, बल्कि उसकी बुराई उससे दूर करना है। आमिर गंदा बच्चा है बल्कि सब में मशहूर हो गया, तो उसको क्या करना, अकेले में समझाना, देखो आमिर आप ऐसी गलत काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है, बल्कि उसको अकेले में आमिर को बोले तो आमिर दूर कर लेता अपनी गलती। दूसरों को बोलने से अभी उसकी बुराई फैलेगी मगर बंद होगी क्या? जयान समझ गए ना बेटे? मैं आगे बढ़ूं? हाँ मैम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अब देखिए, और एक क्या है? बद अखलासी से किसी से बात ना करना, किसी से भी बात ना करना। यानी क्या बद अखलाकी क्या है मालूम? जयान ने जरा पानी दो बेटे, अरे नहीं दे दे, मैं अब भी आगे बैठा भाई, ये बद अखलाकी है, गलत लहजा है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना, मालूम? जी अच्छा दे रहा हूं, नहीं, अगर आप बिल्कुल नहीं भी उठ पा रही तो थोड़ी देर रुकिए ना, मैं दूंगा इंशाल्लाह, ऐसा बोलना। इतनी अपनी बात में मिठास ला लेना बेटे कि हमारी बात सुनने लोग इंतजार करना। अरे कितना अच्छे बच्चे हैं जी, ये कितना अखलाक से रहते हैं, कभी बदतमीजी नहीं करते, बद अखलाकी नहीं करते, बोलना। किसी को झिड़की से हरगिज बात नहीं करना बेटे, सगे भाई बहन भी क्यों ना हो। ज्यादातर हमारे अखलाक क्या मालूम होते अपने घर में, तो हमें किसी से भी बद अखलाकी नहीं करना है। माँ बाप से तो बहुत दूर की बात, माँ बाप से तो बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं करना, अपने दोस्तों और बहन भाइयों से भी नहीं करना है, ठीक है? समझ रहे ना मेरी बात? किसी को भी, टीचर हो, अपने फ्रेंड्स हो, अपने बहन भाई हो या माँ बाप हो, किसी से भी नागवारी बात को सुनकर मुस्कुरा देना और चुप कर जाना है। समझ रहे? अगर कोई गलत बात कर दिया तो सुने तो भी हम चुप हो जाना और मुस्कुराकर उसको सही जवाब देना, तो उन्हें बोलने वाला खुद परेशान होता, आई मैं इसको झिड़की दिया तो इन्हें मुस्कुरा रहे, देखो क्यों, ये करके दिखाए, ऐसा हो सकता, ये कोई नई बात नहीं है। हमारे पहले के लोगों ने, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ऐसा किया, जैसा कि कचरा डाले तो उन्होंने क्या जवाब दिए, लड़े उनसे नहीं ना, कचरा साफ करके मुस्कुरा के चले गए अल्लाह के रसूल। ये हो सकता हमसे भी, इसलिए ये चीजों की आदत डालो, बोल रहे किसी को भी झिड़की से, गुस्से से, गलत अल्फाज में बात नहीं करना, ठीक है? अब देखो, लोगों को तंज भरी बातों से बेनियाज होकर शरई पर्दा करना, यानी दूसरों को गलत चीजों से बिल्कुल गलत अंदाज में ऐसा बात करना कि लोग परेशान हो जाए आपकी गुफ्तगू सुन के, तो ऐसा भी मना किया गया है। बहुत बातें हैं, हमारी क्लास का टाइम खत्म हो रहा, बस इतना याद रख लीजिए कि हमें अपने आप को ऐसा बनाना है जैसा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनाना चाहते थे। समझ रहे मेरे बच्चों? हमें कैसा बनाना है? देखो यहाँ बता रहे हैं, देखो अपने अखलाक को इतना खूबसूरत बनाने की कुर्बानी कर दो ताकि लोगों को अल्लाह से जोड़ सको। ये सब करना है किसके लिए? लोगों को अल्लाह से जोड़ने के लिए। अल्लाह की खातिर हमें भी अपने नफ्स के खिलाफ जाकर ये अहद करना होगा कि या अल्लाह, आज तेरी मोहब्बत पाने की खातिर मैं हर उस चीज की कुर्बानी दूंगी जो मेरे लिए मुश्किल है, मेरे नफ्स पर भारी है, मगर मैं अल्लाह की खातिर वो मेरे अंदर की गलतियों को दूर करने की कोशिश करूंगी। ये हम इरादा करना। समझ रहे बच्चों? यानी अल्लाह की खातिर कुर्बानी का मतलब ये नहीं सिर्फ अशरे जिलहिज्जा के इन कुछ दिनों में कुर्बानी करने का अहद कर लेना, बाद में फिर पूरे बुराइयां करना, बल्कि नहीं, बल्कि जब तक सांस है तब तक कुर्बानी देती रहूंगी।
तब तक मैं अपने वादे को निभाऊंगी जो मैं अल्लाह से कर रही हूँ, इस चीज की कुर्बानी दूंगी जो मुझे मोमिन बनने से रोक रही है और मुझे अल्लाह का प्यारा बनने से रोक रही है और अल्लाह का खुर्ब पाने के दरमियान में आ रही है। समझ रहे? हम इन तमाम चीजों की कुर्बानी देंगे जो हमें अल्लाह से दूर कर रही, जो हमें अल्लाह मोमिन बनने से रोक रही, अल्लाह के करीब जाने से जो चीजें हमें रोक रही, उन तमाम चीजों से हमें रुक जाना है। इंशाल्लाह रुकेंगे ना? हेलो हाँ मैम रुक जाएगी। हाँ, बोलना, इरादा करना दिल से, उसमें मदद करता कौन? अल्लाह ताला। अल्लाह ताला हमारी मदद करते हैं और हमें उन बुराइयों से दूर रखने की आसानियां पैदा करते हैं हमारे लिए। ठीक है, चलो आज की क्लास के मुतालिक आप लोगों को कोई सवाल है?